الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما. تمام تعریف حمد و ثنا رب ذوالجلال کُنتھ بیٚیہِ ٲسِن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہنٛدِس آلس تامَتھ. بہرحال پٔتمٮ۪ن درسن منٛز ووت اَسہِ پران کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ ارشاد فرماوان کہ یِم زمین و آسمان ہٕنٛز یۄس زن تخلیق یا زمین و آسمان ہٕنٛز یۄس پیدائش چھِ اور رات اور دن کا آنا اس میں عقل والوں کے لیے اس میں اولي الالباب کے لیے نشانیاں ہیں. کیا نشانی چھِ یعنی جب وہ ان آیات پر غور کرتے ہیں تو بہرحال وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس باضابطہ منظم کائنات کو بنانے والا کوئی مدبر کوئی حکیم اور کوئی طاقت والی کوئی ذات ہے. ان اولی الالباب کی صفات پھر ہم نے کل پڑھی تھی. وہ صفات کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اولی الالباب حقیقت میں عقل والے حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں کھڑا بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. صرف وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ زمین و آسمان کی اس خلقت میں اس پیدائش میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں. جب یہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی مخلوق میں تو یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو عبث اور فضول بنایا نہیں ہے بلکہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہاں سے آج ہمیں شروع کرنا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. جب یہ اولی الالباب جب یہ عقل والے اس کائنات کی تخلیق پر اس زمین و آسمان پر رات اور دن کے آنے اور جانے پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات عبث اور فضول نہیں بنائی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی یہ کائنات کی نظام بنومت کیا بلکہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں غور و فکر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کے بعد کہ اے اللہ آپ نے اس کائنات کے اس وجود کو یوں ہی عبث اور فضول نہیں بنایا ہے. یعنی جب وہ غور کرتے ہیں کہ یہ سورج کا طلوع ہونا یہ کبھی ایک لمحے بھی تاخیر اس میں نہیں ہے نہ تو اس میں کبھی نشہ ات مز گژھان تاخیر اور نشہ ات مز گژھان تقدیم. اسی طرح جو یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نظام پہاڑوں کا نظام دیکھتے ہیں رات اور دن کا نظام دیکھتے ہیں بہرحال یہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اتنی منظم کائنات یہ یوں ہی اللہ نے نہیں بنائی ہوگی بلکہ اس کا کوئی مقصد اور اس کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی ضرور مقصد اور غایت ہوگی. اسی لیے یہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے بارلا خدائے ژےٚ یہ کائنات نظام فضول بنومت کیا بلکہ بیچ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ یمن آسن مومنن متعلق اور انسانوں کے متعلق بتاتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو یوں ہی فضول بنایا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور کیا تمہیں واپس میری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے. یعنی کیا ہم نے آپ کو یوں ہی فضول ہی لایا ہے اس دنیا میں آپ سے کوئی باز پرس اور آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ
इसी तरह यहाँ पर भी कहा गया है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, कि ये उलिल अलबाब जब इस कायनात पर गौर करते हैं, ये उलिल अलबाब जब इन कायनात की चीज़ों पर गौर करते हैं तो ये बेसाख्ता पुकार उठते हैं कि ए बारिला खुदाया, इतनी मुनज़्ज़म कायनात आपने यूं ही अबस और फजूल नहीं बनाई है, बल्कि एक दिन ज़रूर आने वाला है जब आप इस मुनज़्ज़म कायनात के बारे में लोगों से बाज़ पुरस करेंगे। सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, ए बारिला खुदाया चशे ये मुनज़्ज़म कायनात बनोमुत और हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि आपने ये मुनज़्ज़म कायनात यूं ही नहीं बनाई है बल्कि इसका कोई मकसद है, इसका कोई मुद्दा है, इसलिए सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, ए बारिला खुदाया तुझु पाक तो मुनज़्ज़ा कि चाहे यीचा कायनात फजूल और चाहे यीचा कायनात बल बनायत क्या, इसलिए आप ज़रूर इन चीज़ों के बारे में एक दिन हमसे मुआख़ज़ा करेंगे। इसलिए उस दिन क्या सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, ए बारिला खुदाया तुझु पाक नक़ाइसो निश, तुझु पाक अयूबो निश, तुझु पाक एम नुक्स निश कि क्या करें कहाँ चीज़ बल पद। बहरहाल इसलिए फ़क़िना अज़ाबन्नार, पस बचाओ अस कम निश, अज़ाब जहन्नम निश, क्योंकि इस कायनात के बनाने का मंतकी नतीजा ये है कि एक दिन आने वाला है जब आप एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे और उस दिन हमें अज़ाब जहन्नम से, नार के अज़ाब से बचाइए। वो अतौर फिक्र कि यम उलिल अलबाब आसन छ, यम वाकई अक्ल वाल आसन छ, तुम यम सातन कायनात के हकीकतन पे गौर करन छ, वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने अबस और फजूल नहीं बनाया है। एक नतीजा उनका ये होता है। दूसरा नतीजा ये कि जब ये समझते हैं कि इस कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने फजूल नहीं बनाया है, इसलिए वो उस कायनात के उस बनाने वाले की तारीफ करते हैं, उसका जिक्र करते रहते हैं और इस कायनात की हकीकतों पर गौर व फिक्र करते रहते हैं। तीसरा नतीजा वो ये निकालते हैं, अगर अल्लाह ने इतनी वसी और अरीज कायनात बनाई है और इसमें इतना मुनज़्ज़म हर कोई चीज़ और हर कोई चीज़ इसमें मुनज़्ज़म है, इसका मतलब है कि किसी मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया होगा। बहरहाल वो मकसद क्या है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इस इबादत के बारे में लोगों से और जिन्नात से मुआख़ज़ा करेगा। इसलिए ये उलिल अलबाब जब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमसे मुआख़ज़ा होगा, इसलिए ये बेसाख्ता पुकार उठते हैं फ़क़िना अज़ाबन्नार, ऐ सानी खुदाया तुझु पाक तो मुनज़्ज़ा नक़ाइसो निश, तुझु पाक तो मुनज़्ज़ा कहाँ चीज़ फजूल तो अबस बनान निश, इसलिए बारिला खुदाया तो बचाओ अस कम निश, जहन्नम के अज़ाब निश। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता। अब ये उलिल अलबाब अल्लाह से दुआ मांगते हैं। उनकी दुआ क्या होती है, रब्बना, ऐ सानी रब, ऐ सानी परवरदिगार, इन्नका मन तुदखिलिन नार, बेशक जिस शख्स को तूने नार में दाखिल किया, यानी बेशक युस कांसा से दाखिल को थर कात मज नारस मज जहन्नमस मज, फ़क़द अख़ज़ैता, पस वो रुस्वा होकर दाखिल होगा उसमें, यानी उसके मुकद्दर में, उसकी किस्मत में क्या लिखी है, ज़िल्लत और रुस्वाई। अल्लाह ताला फरमाता वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का वहाँ पर कोई भी मददगार नहीं होगा। अल्लाह ताला बचाने से भी ज़िल्लत निश और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बेयारो मददगार होने से बचाए। अल्लाह ताला फरमान कि ये उलिल अलबाब जब इस कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं, वो अल्लाह को पाते हैं इस कायनात की गौर व फिक्र के बाद, और फिर वो बेसाख्ता पुकार उठते हैं कि ये कायनात अबस और फजूल नहीं है, और वो इसलिए अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि खुदाया ऐसे बचाए जहन्नम के अजाब निश, क्योंकि जिसको तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया बस वो रुस्वा होकर और वो जलील व खार होकर उसमें दाखिल होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और वहाँ पर जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी, और ये उलिल अलबाब पुकार उठते हैं, रब्बना, ऐ सानी खुदाई, इन्नना, बेशक हमने, समिअना, सुना, मुनादियन युनादी, एक पुकारने वाले को जो पुकारता था, किसकी पुकार लगाता था, लिल ईमान, वो किसकी तरफ बुलाता था, ईमान, यानी इशारा है कि इनकी तरफ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। यानी ये उलिल अलबाब जो है ये पुकारते हैं और ये रब से दरखास्त करते हैं, ऐ बारिला खुदाया अस बूझ चान तरफ युजन मुनादी दिन वोल ओस, चान तरफ युजन ईमान को दावत दिन वोल ओस, और इसके अवलिन मिज़दाक कौन है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इसके मिज़दाक वो लोग भी हैं
जो वक्तन फवक्तन लोगों को ईमान की दावत देते हैं और अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। बहरहाल ये उलिल अलबाब पुकार उठते हैं, ऐ सानी खुदाई अस बूझ मुनादी दिन वोल, अस बूझ खुदाइस कुनत ईमानस कुनत बुलावन वोल। अब बताइए सबसे पहले इसका इकरार किन्होंने किया? सहाबा किबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने, क्योंकि जब उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो सबसे पहले उन्होंने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुनादी की तस्दीक की। तो सबसे पहले उलिल अलबाब कौन बने? फिर हजरत सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। गो सबसे अवलीन ग्रोह इस उलिल अलबाबन हिंच सुकुश सहाबा किबार रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अलमिया तो ये है, आज बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े फलसफी अपने आप को अक्ल वाले तस्लीम करते हैं, मगर अलमिया उनकी अक्लों पर, वहाँ से सहाबा पर एतराज़ और सहाबा पर मुख्तलिफ किस्म के वो वार और हमले करते हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो उलिल अलबाब की फहरिस्त में है जो सबसे पहले उलिल अलबाब के तबके को ही निशाना बनाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला फरमान रब्बना इन्नना समिअना मुनादी युनादी, ये उलिल अलबाब, ये कायनात की हकीकतों पर गौर करने वाले, ये एक तो अल्लाह से जहन्नम की पनाह मांगते हैं और दूसरा ये अल्लाह से ये दुआ भी मांगते हैं कि ए बारिला खुदाया अस बूझ चांद तरफ आव अख मुनादी आ यम जन अस बुलाई ईमानस कुनत। इसलिए हमने क्या किया? अन आमिनू, जो पुकारता था कि ईमान लाओ बिरब्बिकुम, अपने रब पर, फआमन्ना, बस हमने क्या लाया? ईमान लाया। और अवलीन ग्रोह कुछ हजरत सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना। बस ये एक तो ये मुनादी की उस मुनादी की उस निदा पर एक तो उन्होंने क्या किया? लब्बैक किया, और उसके कहने पर अल्लाह पर क्या लाया? ईमान लाया। लेकिन इस ईमान लाने के बाद वो अपने आप को कोई बड़ी चीज नहीं तस्वुर करते हैं। यमन छुन पत पन्ने साथ ईमान पर घुमंड किबर गसन क्या, ये अपनी अमलों पर तकिया नहीं करते हैं, बल्कि ये अल्लाह से पुकारते रहते हैं रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना, ऐ सानि खुदाया सानिन गुनाहन कर माफ। यानी यम कोताही यम लग्जिश आस ईमान अन्न पत्ते गमच आसने, इंसान होने के नाते फगफिर लना ज़ुनूबना, सानिन यमन गुनाहन पे तो पन्ने गफारी हुन पर्द, सानिन गुनाहन पे कर मगफिरत वकफिर अन्ना सय्यातिना, और हमसे हमारी कोताहियां, हमसे गुनाह, हमारे गुनाह मिटा दे। यानी अशनिश कर तक सन गुनाह माफ। यानी ये ईमान वालों का ये जन ईमान वाली सिफत यह आसन कि जब वो ईमान लाते हैं फिर वो अपने ईमान पर इतराते नहीं हैं, फिर वो अपनी अमलों पर इतराते, बल्कि उन्हें पता होता है कि हमारा मकाम और अल्लाह का मकाम क्या है, इसमें तो कोई मैल ही नहीं है। हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, ये हमने कोई मिन्नत अल्लाह पर नहीं रखी, बल्कि ये फिर भी आजिज़ी, इनकिसारी और इंतहाई तज़ल्लुल की तस्वीर बने हुए होते हैं। इसी तज़ल्लुल की तस्वीर और इसी आजिज़ी और इनकिसारी की तस्वीर बनते हुए ये अल्लाह से आजिज़ाना दुआ करते हैं रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना, ऐ सानि खुदाया सानिन गुनाहन करत माफ वकफिर अन्ना सय्यातिना, और यम कोताही यम गुनाह सान दस गमित आसन वकफिर अन्ना, तुम कर तक अस निश क्या दूर, तुम कर तक अस निश साफ, वतवफ़ना मअल अबरार, और बीत ऐसे मौत कमन से अबरारन से। यानी जब हमारा खात्मा होगा वो किन के साथ होना चाहिए? वतवफ़ना मअल अबरार, अबरार के साथ। अबरार ये चीज रमत बिर मज, बिर माने नेकी, ये पोड़ पास कौन थे लाइसल बिर्रा अन तुवल्लू, नेकी ये नहीं है, तो इसी से निकला है अबरार। अबरार का माने क्या हुआ? अबरार माने वो नेकोकार लोग। वतवफ़ना मअल अबरार, और सोन हशर, सोन इज़न वफात, सोन इज़न मौत सकर कमन से अबरार से। ये कितनी अजीम दुआ है कि अकिस इंसानस गैसे आसन खात्म गैसे कमन से आसन अबरार से। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अंतुम तमूतूना कमा तहयून, आपको मौत उसी हालत में आएगी, उसी तरह आएगी जिस तरह आपने जिंदगी बसर की होगी। यानी तही वो मौत तिथे पे जित पे जिंदगी बसर कंसे आसि कर्मज जिंदगी बसर अल्लाह ताला से बगावतस मज, उसकी मौत वाकई तौर पर उसी बगावत की हालत में होगी। कंसे आसि कर्मज जिंदगी बसर सिर्फ बागन पत, बिल्डिंगन पत, इटलियस पत, या इथे पे डिलिशस पत, वो डिलिशस करते हुए ही उसकी मौत आएगी। हाँ, कोई होगा उसने कलमे के ऊपर अपनी ज़िंदगी निशावर की होगी, उसने ईमानी वाली ज़िंदगी और ईमान वालों के साथ ज़िंदगी बसर की होगी,
इंशाअल्लाह मुस्तान कवी इम्कान है अल्लाह की रहमत से उसकी मौत भी किस पर आएगी, तम से मौत ही कमन से ईमान वाली। यहाँ पर ये दुआ इनकी है वतवफ़ना मअल अबरार, और सानी खुदाई मौत इनसे ऐस वफात कर कमन से मअल अबरार। बताओ इसके लिए सूरत क्या है, फिर इसका मतलब है कि हमें जिंदगी भी किन के साथ गुजारनी होगी, इन्हीं अबरार के साथ। वो ये सिफत भी है ईमान वालों की कि ईमान वाले यमजन छ ये इनका ताल्लुक, इनका उठना बैठना, इनका जीना, इनका मरना ये किन के साथ होता है, ये किन के साथ होता है, अबरार के साथ। बल्कि कुरान पाक से हुक्म कर या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो आ करियो खुदा सुन तकवा इख्तियार भी क्या करियो, वकूनु मअस-सादिक़ीन, और किन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों का मतलब है इन्हीं नेकोकारों के साथ हो जाओ। इसलिए इंसानस गछ आसि हमेशा तड़प और इंसान गछ हमेशा कोशिश करन कि सह गछ पनुन ताल्लुक पनुन वथुन बिहुन कमन से थाउन रितन इंसानन से, तम सुन दोस्त गछ आसन कोस इंसान, रुत इंसान। हदीसस में आमद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि एक इंसान अपने दोस्त के ईमान पर होता है। इंसान आसन सह कम से दीनस पे आसन, अगर उसका दोस्त बेदीन है वो भी बेदीन हो जाएगा। अगर तम सुन दोस्त नेकोकार छ इंशाअल्लाह मुस्तान उसका असर भी ये होगा कि वो क्या होगा, वो नेकोकार बनेगा। बल्कि उलमा से लेखन इस सोहबत का असर इतना पड़ता है, समझाने के लिए उन्होंने लिखा है कि बद सोहबत और रुद सोहबत अमुक असर समझाने खतर उलमा मिसाल दिन किताबन में। बद सोहबत की मिसाल आप ऐसे लीजिए, कोई शख्स किसी ठठेरे की दुकान पर चला गया, आप इंसान को कम सिंदिस सह गो अमिस खार सिंदिस दुकानस मज। अगर सह खार सिंदिस दुकानस मज मल है अत कहीं ती चीज, मगर जो ही वो बैठेगा अख तर अमिस अतुक मुशुक, अमी भट्टी यह दुहुक मुशुक तरस, और साथ में ये भी हो सकता है कोई चिंगारी इस भट्टी से उठेगी उसके कपड़ों को जला डालेगी। गो अत आवा अमिस नुकसान गो सके ना, अत गो अमिस फायदे, नुकसान ही हो गया। अगर इसने कोई चीज वहां से लेनी नहीं थी, हेन गो अगर का इंसान मैं हता वाल मैं क्या करी मे बिहुन पर दरबार कर, ये यही मिसाल है। दरबार करना सीधी यह आपको बेदीन बना देगा। मुल्हिद बेदीन दोस्त के साथ रहोगे वो आपको मुल्हिद और बेदीन ही बनाएगा। और नेक सोहबत का, अच्छी सोहबत की मिसाल उलमा ने लिखी है, किताब में लिखे, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई इंसान किसी अतर फरोश के पास चला गया, ये वो अतर फरोश सिंदिस दुकान पर, हाँ अगर अतर ये खरीदेगा भी नहीं मगर बैठा जो ही बैठेगा ये जन ये अतर आस अमिक मुशक लाड़ अमिस, और इसकी खुशबू लेकर ये वहां से निकलेगा अगर इसने वहां से कुछ खरीदा भी नहीं है। तो यही नेक सोहबत का और अच्छी सोहबत का असर है। अवया ये वन वतवफ़ना मअल अबरार, और यम नेकोकार दुआ रोजन कर, यम उलिल अलबाब दुआ रोजन करन, ऐ बारिला खुदाय आकर तो सानन दुआ गुनाहन मगफिरत। यानी यमन ये चीज बासन क्या कि असल ईमान तो क्या गई पाक साफ नहीं, बल्कि इंसान होने की हैसियत से इनसे गलतियां भी होती हैं। यम गलतियां नजरअंदाज करने के, बल्कि ये बार बार अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करते रहते हैं, किससे, अल्लाह से। और दूसरा वकफिर अन्ना सय्यातिना, बीच मंगन रोजन खुदाया अस कर तो पाक साई गलती साई कोताही यम कर तक अस निश क्या दूर। और दूसरा ये क्या कहते हैं, वतवफ़ना मअल अबरार, और ये दुआ करते रहते हैं कि खुदाया अस इनसे मौत अस कर खातिमा कमन से मअल अबरार। और ये भी याद रखिए, यहाँ से उलमा ने एक और नुक्ता निकाला है, वो ये कि इंसान की जो अमलों का दारमदार है वो किस पर, उसका इन्हिसार किस पर है, वो इन्हिसार है खात्मे पर। खात्मा यानी खात्मा का मतलब क्या हुआ, अगर का इंसान उम्र और नेक अमल कर मगर उसका खात्मा अगर बुरे अमल पर हो गया तो उसके सारे अमाल अकार, तुम सारी क्या अकार। बल्कि हदीस में आमद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो, अगर का इंसान अल्लाह ताला बचाए जिना करते हुए अगर उसकी मौत हो जाएगी, कयामत के दिन वो जिना करते हुए ही उठाया जाएगा। किसी की मौत जो है अगर वो चोरी करते हुए हो जाएगी, कयामत के दिन उसे किस हालत में उठाया जाएगा, चोरी करते हुए ही उठाए। और इसी के बरक्स अगर कंसिस मौत सजदस किस हालत में, कितना खुश नसीब है वो इंसान यमिस सजदस में मौत ही, कयामत के दिन में किस हालत में उठेगा, वो सजदे की ही हालत में उठेगा। इसलिए खुदायस गसे यह जन हुस्न खातिमा दुआ ते मंगुन, यानी बार बार गस दुआ कर खुदायस, ऐ बारिला खुदाया मोन खातिमा यह जन सह कर कत पे, अल्लाहुम्मा अहयिना अलल इस्लाम व अमितना अलल इस्लाम। आखिरी आयत, रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसलिका वला तुखजिना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुखलिफुल मिआद। और इन्हें उम्मीद भी होती है
یم زن اُلیل ابرار اُلیل الباب آسان یمن چھ رۄبس سۭتۍ کیٛاہ آسان اُمید. اور یاد تھٲیزیو یہ حضرت عمر کا قول بھی ہے اور یہ شاید غالباً حدیث سے بھی یہ مضمون نکلتا ہے. المومن بین یس زن مومن یس زن چھ آسان یہ کس میں ہوتا ہے یہ بین الخطر امس خطرہ تہ آسان و بین الرجا اور یہ امید کے بیچ میں بھی ہوتا یعنی امس خدائے سٕنٛز امید تہ آسان اور امس خدائے سٕنٛدِ کبریٲیی ہُنٛد خدائے سٕنٛدِ جلال خطرٕ خوف تہ آسان. خوف کیٛاہ چھُس آسان خوف چھُس یہ آسان کہ اگر خدایَن روٚٹنس کُنہِ گۄناہس پٮ۪ٹھ میری پھر بخشش نہیں اور امید تہ چھس آسان. امید کیا چھس آسان کہ غفور رحیم جو خدا انشاءاللہ مجھے اس کی رحمت سے یہ امید ہے کہ میری گناہوں پر وہ رحمت کی چادر پھیر دے گا. مگر مومنس گژھِ آسُن خداے سُنٛد خوف تہ اور مومنس گژھِ خداے سٕنٛدِ مغفرتٕچ اور رحمتٕچ امید تہ گژھِ آسٕنۍ. بہرحال ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک یہ اُلیل الباب یہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. ربنا اے سانہِ خدائے وآتنا ہمیں عطا کیجیے اس کر تو سو عطا ما وعدتنا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اللہ رسول کا کن کے ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے. اما رسولوں کے ذریعے سے کیا وعدہ ہوا ہے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ مومنین کے لیے ہے جنت کا. رسولوں کے ذریعے سے مومنین کے لیے اچھے ایک خاتمے کا وعدہ ہے. رسولوں کے ذریعے مومنین کے لیے اعلیٰ نعمتوں کا وعدہ ہے. رسولوں کے ذریعے مومنین کے لیے اللہ کی رضا کا وعدہ ہے. رسولوں کے ذریعے ان مومنین کے لیے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کا وعدہ ہے. تو انہی وعدوں کی طرف یہ بندے کہتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک اے بار اللہ خدایا اس کر تو تہ کیسا عطا یہ کیسا ژےٚ وعدٕ چھی اَسہِ کوٚرمُت کٕہٕنٛدِ ذٔریعہٕ رسوٗلن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ ولا تخزنا یوم القیامہ اور یہ نہ اَسہِ کیٛاہ قیامتٕکۍ دۄہ رسوا کرِ یعنی یہ نہ اَسہِ قیامتٕکۍ دۄہ رسوٲیی پیٚیہِ وٕچھِنۍ یہ نہ اَسہِ قیامتٕکۍ دۄہ ژٕ رسوا کرِ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اکثر دعا مانگا کرتے تھے کیا ولا تخزنا یوم القیامہ یعنی اس کر زن سے قیامتک دۄہ کر زن سے اس کیا یہ زن رسوا کیا. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک اے بار اللہ خدایا اس کر تہ کینٛژھا عطا یہ کینٛژھا ژےٚ وعدٕ چھی اَسہِ کوٚرمُت رسولن ہٕنٛدِ ذریعہٕ ولا تخزنا یوم القیامہ بیٚیہِ یہِ قیامتک دۄہ اَسہِ رسوٲیی کرِ. اب انہیں ڈر کس بات کا لگا ہوتا ہے بس قیامت کی پیشی کا یعنی یمن چھ آسان ہمیشہ استحزار ہمیشہ یہ ڈر کہ پگہ اس خدایس برونٛٹھ کَنۍ کھڑا گژھُن نعوذ باللہ من ذالک خداے بچٲیِن تتہِ گژھِ نہٕ اَسہِ رسوٲیی گژھٕنۍ رب العالمیٖنس برونٛٹھ کَنۍ کینٛہہ. انک لا تخلف المیعاد اے بار اللہ خدائے ژٕ چھُکھ نہٕ پننس وعدس خلاف ورزی کرن وول کینٛہہ یعنی جو وعدے آپ نے رسولوں کے ذریعے مومنین کے لیے کیے ہیں ہمارے لیے جو ایمان کے ذریعے سے کیے ہیں ایمان کی وسعت سے کیے ہیں اے بار اللہ خدایا تم ساری وعدٕ کر تک سٲنِس حقس منٛز قبول پورٕ اور بیمہ کر اَسہِ قیامتٕکۍ دۄہ یعنی رسوا کینٛہہ. انک لا تخلف المیعاد بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ژٕ چھُکھ نہٕ پننس وعدس مُکرن کینٛہہ. بہرحال رب العالمیٖنس منٛگو دعا کہ رب العالمیٖن کٔرِنۍ یِم سٲری دعا سٲنِس حقس منٛز قبول. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.